ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، میں آج چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہمارے تمام صوبوں میں، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، ہر جگہ پہ وہ ایشوز چل رہے ہیں، اور وہ ایشوز ایسے ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن تمام بلکہ جو پارٹیاں ان کو مل کر توجہ دینی چاہیے۔ تو میں آج اسلام آباد سے آغاز کرتا ہوں، آپ کے شہر سے، آپ اسلام آباد سے MNA ہیں، تو دیکھیں جی ایک ایشو ایسا ہے جو آپ کو پورے پاکستان میں نظر آئے گا، اور وہ ایشو کیا ہے آپ دیکھیے کہ اسلام آباد میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ کوڑا کرکٹ کی آماج گاہ، یہ کچرا کنڈی نہیں بلکہ گرین بیلٹ ہے جو حد نگاہ تک کچرے سے بھری پڑی ہے۔ یہ کوئی دور دراز کا پسماندہ علاقہ نہیں بلکہ شہر اقتدار اسلام آباد ہے۔ فیض آباد سے محض 3 میل کی مسافت پر کھنا پل سے ملحق لہتراڑ روڈ کی طرف جائیں تو جا بجا کچرے کے ڈھیر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بدبو، تعفن اور بیماریاں، رہائشیوں کی مشکلات ان گنت ہیں۔ ایک تو یہ سامنے ہسپتال ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے یہ دیکھیں کچرے کا ڈھیر ہے، بچے یہاں سے گزرتے ہیں اور اپنے ساتھ یہ سارا کوڑا کرکٹ جو ہے ہمارے گھروں میں بھی جاتا ہے۔ مشکل میں ہم لوگ نکلتے ہیں، باہر نکلیں ہوتا ہی نہیں ہے، اتنی گندگی ہے، گھروں میں اندر صفائی کرو، باہر گندگی ہو تو کیا فائدہ۔ برما ٹاؤن میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور بارش کے کھڑے پانی سے شہریوں کا چلنا پھرنا دشوار ہے۔ سیوریج کی پھٹی لائن سے ہر طرف گندگی اور کیچڑ کا راج ہے۔ اقبال ٹاؤن، فراش ٹاؤن، شکریال اور ملحقہ علاقوں میں خستہ حال گلیاں، ٹوٹی سڑکیں اور کچرے کے انبار عوامی نمائندوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ روڈ وغیرہ خراب ہے، یہاں پہ پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، اسکول آتے وقت پرابلم ہوتی ہے۔ پل بھی ہمارا خراب ہے اور یہ روڈ کی حالات دیکھیں، یہ سارا خراب کر کے چلے گئے ہیں۔ شہریوں کی شکایت ہے کہ حکومت ایک طرف تو نئے انڈر پاس اور برج بنا کر کریڈٹ لے رہی ہے تو دوسری جانب اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی بھی روادار نہیں۔ کیمرامین سردار فیصل کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ جی طارق فضل چودھری صاحب، اسلام آباد میں بہت سے انڈر پاس بن رہے ہیں، فلائی اوور بن رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کی ایک دوسری تصویر بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ امیر صاحب، میں اس میں واضح کر دیتا ہوں، یہ جو آپ نے ویڈیوز دکھائی ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہیں، اور اسلام آباد کے علاقے اس میں سے کچھ میرے اپنے حلقے میں بھی ہیں اور کچھ تھوڑا میرے سابقہ میرا حلقہ ہے، جب 2008 میں پہلی دفعہ میں جیتا۔ اب وہ خرم نواز صاحب کا ہے، خرم نواز صاحب کا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارا ایریا ہے سارا۔ لیکن اسلام آباد میں ہمارے، آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اسلام آباد کا ہمارا سیکٹر ایریا ہے، ایک ہمارا اسلام آباد کا رورل ایریا ہے، دیہی علاقہ اصل اسلام آباد، جو اصل اسلام آباد ہے، جہاں پہ میں آپ یہ کہیں کہ میرا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے، جو ہم پچھلی کئی نسلوں سے یہاں آباد تھے، قیام پاکستان سے پہلے۔ یہ وہ علاقے ہیں سارے، برما ٹاؤن، لہتراڑ روڈ، اس کے ساتھ آگے ترلائی ہے، کھنا ہے، پھر آگے یہ علی پور فراش کی مناظر تھے جو آپ نے دکھائے ہیں، پچرا تک یہ روڈ آگے جاتی ہے، لہتراڑ روڈ ہے، وہ اسلام آباد ہمارا رورل ایریا ہے۔ جو ہمارا CDA کا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسلام آباد کے سیکٹر ایریا کی مکمل صفائی کرتا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کرتا ہے۔ PDM کے دور میں مختصر عرض کر رہا ہوں، جلدی آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے ہمارے رورل ایریا کے لیے ایک شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر ایک ٹینڈر کیا تھا، اور رورل ایریا میں مکمل طور پہ صفائی کا نظام ہم نے، جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا پہلی ٹرم تھی ایز پرائم منسٹر، ہم نے یہ ٹینڈر کر دیا تھا، اور یہ سارے ڈھیر شیر غائب ہو گئے تھے، صفائی ہو رہی تھی رورل ایریا میں بھی۔ پھر جب بیچ میں پیریڈ آیا ہماری انٹرم گورنمنٹ کا، وہ سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکا۔ اب دوبارہ اسلام آباد میں ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بنا رہے ہیں، بلکہ وہ مکمل ہو چکی ہے، جس سے اسلام آباد کا رورل ایریا، سٹی ایریا آلریڈی صاف ہو رہا ہے، مکمل صاف ہوگا۔ رواد سے آگے ایک جگہ جو ہے اس کا نام میں ابھی بھول رہا ہوں، وہاں پہ ڈمپنگ گراؤنڈ کی سائٹ ہم نے لے لی ہے، پرچیز کر لی ہے اسلام آباد کی ہماری CDA نے، اور یہ سارا سالڈ ویسٹ وہاں پہ جائے گا، اور یہ انشاءاللہ صاف ستھرا شہر آپ کو نظر آئے گا جیسے سے نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی ناصر حسین شاہ صاحب، کیونکہ آپ اس وقت کراچی میں بیٹھے ہیں تو ہم آپ کو کراچی کی صورتحال سے بھی باخبر کریں، اور ویسے ہی مناظر کراچی میں بھی ہیں جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسلام آباد کے دکھائے، تو ذرا دیکھیے اسلام آباد سے کے بعد جو کراچی سے ولید احمد صاحب کی رپورٹ ہے۔ جہاں سندھ کے فیصلے ہوتے ہیں اس اسمبلی کے سامنے کچرا، کھیل کے میدانوں میں کچرا، سڑکوں پر کچرا اور گلی محلوں میں بدبو اور بیماریاں پھیلاتا کچرا۔ ضلع جنوبی ہو یا وسطی، علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ہو یا KMC کا، شہر میں جا بجا گندگی کے ڈھیر ہیں۔ یہ نیو کراچی کا سیکٹر 5F ہے، جہاں چاروں طرف آبادی ہے مگر درمیان میں کچرا اور گندا پانی ہے، جس کے باعث علاقہ مکین پریشان بھی ہے اور بیمار بھی ہو رہے ہیں۔ اس سے تقریباً 20-25 سال ہو گئے، اس کی ایسی حالت ہے، کوئی صفائی نہیں ہے۔
कुत्ता मच्छर आता है, अभी देखो दवाई जैसा बंद करने पड़ेंगे। मच्छर की जिलेबी जलाते ना तो भी काबू नहीं आते। गरीबों का कौन सुनेगा? एक वक्त की दवाई लेती 1000 रुपया, 1000 रुपया खाने को नहीं होगा, वहाँ किस का बंदा। एमडी सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कहते हैं अवाम और मुताल्लिका इदारे ताउन करें तो कचरे का मसला हल हो सकता है। कराची in true sense क्लीन होगा जब सब एक पेज पे और सब इदारे अपने अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। गोधरा रोड की किस्मत भी 10 साल से न बदल सकी। यहाँ नाले और सड़क में कोई फर्क बाकी न रहा। इर्द गिर्द के रिहायशियों की ये उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है कि इस सड़क से कभी कचरा और नाले का पानी साफ होगा। कराची इंतजामी लिहाज से मुख्तलिफ इदारों में तकसीम है, जिसमें KDA, KMC, TMC, कंटोनमेंट बोर्ड, सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड समेत दीगर इदारे शामिल हैं और इन इदारों में राब्ते का फुकदान है, जिसकी वजह से कराची में कचरा उठाने का निजाम शदीद मुतासिर है। प्रोग्राम के अब तक टॉप के लिए कैमरामैन सरवर रजा के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज, कराची। नाज़िर शाह साहब, कराची जो है वो पाकिस्तानी मुईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत पुराना मसला है ये गंदगी का, कचरे का। तो इस मसले का हल क्यों नहीं सामने आ रहा? देखें, ज़रूर कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ हैं जो अभी दिखाए गए आपकी तरफ से स्क्रीन पे, लेकिन अगर आप थोड़ा कुछ साल पहले चले जाएं जहाँ पे सिर्फ कचरा ही कचरा, कराची कचरा, इस तरह की भी फुटेज आया करती थी, अब उसमें बहुत ज़्यादा नुमायाँ कमी आई है। हालिया दिनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है और पहले ये डिपार्टमेंट मेरे पास भी था, अब मोहतरम सईद गनी साहब दिन रात उस पर काम कर रहे हैं, मुद्सा वहाब मेयर साहब हैं वो काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। उसकी वजह ये भी है कि पहले पूरे मुकम्मल तौर पर कराची सारे का सारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास नहीं था, कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था, कुछ में नहीं। अब सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम कर रहा है तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। ये इश्यूज़ ज़रूर हैं जहाँ पे आपने दिखाए हैं, ज़रूर मसले मसाइल हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो बहुत बेहतरी आई है। और इस वक्त भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से 10,000 टन के करीब कचरा डेली की बुनियाद पर लैंडफिल साइट पर पहुँचा रहा है। और दीगर जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड हैं, DHA है या CBCs जिस तरह हैं, वो भी कोई 2,000-2,2500 के लगभग कचरा वो भी वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। तो कुछ इश्यूज़ ज़रूर आते हैं जिनको हल करने की कोशिश की जा रही है कि जब मिसाल के तौर पर अगर आपको कचरा नज़र आएगा तो रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द नज़र आएगा, वहाँ पे कुछ इनकी इशू चल रहे हैं। एक दो और जगह हैं वहाँ पे ये मसाइल हैं। दूसरा आ गया जो इसमें बात सामने आई वो कुछ सड़कें और सीवेज का जो इशू है, जिसके वजह से कुछ शहरी परेशान हैं। सड़कों को बेहतर किया जा रहा है, CM साहब ने उस पर फंड्स भी दिए हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे सड़कें बन रही हैं। स्वेज और ड्रेनेज के जो इश्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक हल हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे इश्यूज़ हैं जिनको ज़रूर हल होना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मैं दोबारा सिर्फ इस बात के लिए अर्ज़ करूँगा कि अगर आप मवाजना करें तो बहुत बेहतरी आई है कराची में कचरे को साफ़ करने के लिहाज से। अच्छा एहतशाम साहब, आप क्योंकि चीफ मिनिस्टर KP के एडवाइज़र फॉर हेल्थ हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो गंदगी है, कचरा है, इससे बीमारियां भी फैलती हैं। तो ज़रा मैं आपको पेशावर की सूरत हाल के बारे में शीबा हैदर की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। पेशावर में सफाई का बेहतर निजाम न होने से कूड़ा करकट के अंबार जा बजा पड़े रहते हैं। यूनिवर्सिटी रोड, गंज, किस्साख्वानी समेत अंदरूनी शहर मुख्तलिफ मकामात पर कूड़े के ढेर पड़े हैं। शहरी सफाई की अबतर सूरत हाल पर नाला दिखाई देते हैं। गंद पड़ा है तो उसकी वजह से बू अलग, पानी खड़ा अलग, बीमारी अलग, मच्छर अलग, इसकी वजह से वहाँ मर टाइम यहाँ पे परेशान रहती है। ये गंद पड़ा हुआ है और कोई देखने वाला कोई भी नहीं है। हम कितनी बार ऊपर कह भी रहे हैं इन लोगों को कि अरे इसको सफाई ख्याल रखें, और ये बिल्कुल ये इस बात पे तवज्जो कोई भी नहीं दे रहा। शहर में नालों की सफाई भी नहीं होती, जिससे गंदा पानी गलियों और बाजारों में उबल पड़ता है और बदबू से शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। WSSP हुकाम के मुताबिक अमले की कमी के बायस सफाई के निजाम को पहले की तरह बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है।
55 स्टाफ थे जी, और अभी इसमें 33 स्टाफ रह गए, बाकी 18-20 बंदे रिटायर हो चुके हैं। इसकी जगह पर भर्ती नहीं हुई है, हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है। और हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो भी उसकी भी 10-15 साल हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। गंदगी के ढेरों, खड्डों में खड़ा पानी और अवामी सतह पर भी सफाई का ख्याल न रखने से मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की बहुतायत रहती है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जिनमें दस्त आ गए, जिसमें टाइफाइड आ गया, जिसमें हेपेटाइटिस ए आ गया, तो ये वो तमाम बीमारियाँ हैं जो कि बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो है अगर मच्छरों की नशोनुमा हो रही है तो मलेरिया उस जगह होगा, ज़रूर होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेशतर औकात गंदगी को उठाने की बजाय वहीं पर जलाया जाता है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। मकीनों का कहना है कि हुकूमत की पेशावर पर कोई तवज्जो नहीं है। कई रोज कूड़ा पड़ा रहता है मगर कोई उठाने नहीं आता। शहर में मच्छरों और गंदगी के खात्मे के लिए खातिर खा इक़दाम न होने से मुख्तलिफ अमराज की वबाई सूरत इख्तियार करने का खदशा पैदा हो गया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। जी एहतशाम अली खान साहब, ऐसा लगता है कि कचरे के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, इसके ख़िलाफ़ किसी की कोई तवज्जो नहीं है, बस एक दूसरे के साथ सियासी इख्तिलाफ पर ज़्यादा तवज्जो है। इस पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जो रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई, बिल्कुल ये इस तरह नहीं है कि हम कहेंगे कि हमने सारे शहरों को साफ किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है ना, इस पे इंतहाई फोकस है। हमने इसके लिए जो सफाई मुहिम है, तकरीबन अभी भी हमारी चंद डिस्ट्रिक्ट में अभी भी सफाई का मुहिम जो है ना वो जारी है। स्पेशली पेशावर के हवाले से मैं बात करूंगा। पेशावर में हमारा WSSP है, इसके साथ टीमेज है, नाइबरहुड कौंसल है। हमने इसमें कंपटीशन करवाया है और कंपटीशन के बेस पे इन लोगों को जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, मतलब है कि विलेज कौंसल पे, नाइबरहुड कौंसल पे, तो उनको एप्रिसिएशन लेटर्स भी दिए गए। सीएम साहब ने इसमें कंपटीशन करवाया है और तकरीबन एक डिस्ट्रिक्ट की दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी अभी कंपटीशन हम करवा रहे हैं, ताकि जिसकी डिस्ट्रिक्ट मतलब है कि वो सफाई के लिहाज से उसकी वो रिपोर्ट अच्छी आ जाए तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको अप्रिसिएशन लेटर देंगे और साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ले रहे हैं। तो बाज़ जगहों पे है इश्यूज़, जो रिमोट एरियाज़ है उधर इश्यूज़ है, लेकिन उस पर भी हमारा फोकस है। और हमारी एक प्रोजेक्ट है KPCIP, उसके तहत जो सिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है हमारा, सिटीज़न इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो उस पे हमने बहुत से काम जो है ना वो कर ली है और कुछ को अभी इनिशिएटिव इंशाअल्लाह ताला जो कि वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से हम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अनकरीब इसमें भी कुछ ऐसी इक़दामात लेंगे जिसके लिए मतलब है कि हमारे लोगों को उसमें वो सहूलतें फराहम आ जाएं, जो जिसके मुतालिक वो बातें करें कि ये प्रॉपर तरीके से कूड़ा नहीं उठाया जाता या टाइम लगता है उसमें। तो इंशाअल्लाह इस पे हमारा काम जारी है।